So hello my dear bankers, how are you? I hope the preparations for the upcoming job examinations are going well. So I am regularly providing you guys the topic wise videos for Indian economy and Indian financial system subject for the upcoming job examination. Today we are going to cover a very important topic from where every year they ask two or three questions, right? The topic, as you can see, is the economic crisis 1991. Today in this video, we are going to talk about what were the reasons of the economic crisis, and in the next video, we are going to talk about the what steps were taken by the government of India, what actually were the economic reforms 1991, right? But today, let us try and understand what led to the economic crisis of the year 1991. All right, so let's start with the video. There were five major reasons, my dear friends, which led to the economic crisis of 1991. The very first reason was the weakness. The very first reason was the weakness of pre 1991 policies, right? तो इसमें क्या क्या 1991 से जो पहले पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उनके उनमें, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले द नेहरू मालानोबिस स्ट्रैटेजी, द नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन. It made the Indian industry inefficient and technologically backward due to the absence of competition. Now, the government was focused on import substitution, which means the government relied on the indigenously manufactured products. But the problem at that point of time was we were not efficient in the manufacturing capabilities, right? Our manufacturing capabilities were not up to the mark, and that is why we were not able to produce the products which are competitive with respect to the एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट, सॉरी. तो सरकार ने ये तो कह दिया कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, सरकार ने ये तो कह दिया कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी हमारे पास उस समय थी ही नहीं, राइट? इट लेड टू द टेक्नोलॉजिकली it led to the Indian industry inefficient and technologically backward, right? Then there were heavy regulation of private sector through the system of license and permits, right? जो private sector थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा regulation था, बहुत ज़्यादा restrictions थी, right? There was a licensing raj, and due to which the private sector was not able to flourish within the Indian economy, and that was a very big reason. That was a very flawed pre 1991 policy. Inefficient public sector due to excessive political interference. जो हमारा पब्लिक सेक्टर भी था, देखो प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशन हो रखी थी तो प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश नहीं कर रहा था, एंड द पब्लिक सेक्टर इटसेल्फ वाज नॉट efficient as per the requirement because of the excessive political interference, which led to the red tapeism, and there was a huge corruption within the public sector enterprises, जिसकी वजह से जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था वो भी उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था. And last but not the least, there were low return on investment and low growth rate of enterprise due to limited competition, limited growth opportunities due to a closed economy. Our economy was closed, right? We were not opened up. The globalization, the policy of globalization was not implemented, right? And hence there were very low returns of investment and there were very low growth rate of enterprises क्योंकि competition नहीं था और growth opportunities भी limited थी. ठीक है. The next reason was the foreign exchange crisis. This, I believe, was the major reason of the economic crisis of 1991. So what happened in the year 1991? Indian economy faced an acute shortage of foreign exchange. अब foreign exchange की अगर कमी हो जाएगी, so the major problem is with the shortage of foreign exchange that we are not able to pay back, first of all, the loan that we have taken, right? हम pay back नहीं कर पाएंगे. दूसरा, we will not be able to pay for the import bills. जो भी हमारे इंपोर्ट बिल्स होंगे वो हम कैसे पे करेंगे? हमें फॉरेन एक्सचेंज में पे करना होता है इंपोर्ट बिल्स. तो अब कोई कंट्री फिर हमें सामान भी नहीं बेचेगा और ना ही कोई कंट्री हमें लोन देगा. तो फॉरेन एक्सचेंज का एक्यूट शॉर्टेज हो गया था, इतना शॉर्टेज हो गया था दैट बिटवीन द जनवरी 1991 एंड जून 1991 इंडिया हैड just the foreign exchange enough to meet the import needs of only about 3 weeks. केवल 3 हफ्तों के import bills पे करने के हमारी पास कैपेबिलिटीज बच गई थी, and this was a major reason of economic crisis. Now you must be wondering that what led to this foreign exchange crisis. क्या हुआ था? Major reason है जी Gulf War. The Gulf War which happened between the Gulf countries of Iraq and Kuwait, it led to the increase in oil prices. इससे oil prices बढ़ गए,
एंड जब ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया का जो बीओपी डेफिसिट था वो भी बढ़ गया, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा ऑयल, ठीक है। महंगा पड़ेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस और ज़्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, एक तो ये हुआ कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए जिसकी वजह से हमें ऑयल जो है महंगा पड़ने लगा, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यूज होने लगा। एंड ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग इन द गल्फ रीजन्स फेल डाउन फास्ट। अब क्योंकि गल्फ में लड़ाई चल रही थी, गल्फ कंट्रीज में लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पे जो इंडियंस काम कर रहे थे वो जो वहाँ से रेमिटेंसेज इंडिया में भेजते थे उसमें भारी गिरावट आई। और प्राइवेट रेमिटेंसेज जो है वो इंडिया की इनकम का और यू कैन से इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा सोर्स है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स का आज भी इनफैक्ट जो रेमिटेंसेज है वो बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। लार्ज एक्सटर्नल डेट्स, ठीक है, लार्ज एक्सटर्नल डेट्स हो गए थे जो कि हमें पे बैक करने थे। और अब ऐसा होता है कि सरकार लोन को चुकता करने के लिए लोन लेती है, या हम भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा होता है दैट समटाइम्स when we are not able to pay back a particular loan, we take another loan to pay back that loan, and hence we fell into the loan trap. Similarly, government of India, fell into this loan trap, and यहाँ पे तो एक और प्रॉब्लम हो गई थी दैट फ्रेश डेट्स वर डिनाइड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया था कि जब तक आप अपने इस क्राइसिस को नहीं संभालेंगे तब तक हम आपको और लोन नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे बैक दिस लोन, ठीक है। एंड रैपिड विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ एनआरआई डिपॉजिट। अब एनआरआईज को ये लगा कि भाई इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट, एंड हेंस दे विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट्स, और इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। So these were some of the reasons of the foreign exchange crisis that happened in the year 1991. The third reason that led to the economic crisis of 1991 was the fiscal policy. ठीक है, जो सरकार की expansionary policies थी, all of them were focused on the consumption rather than the investment. अब सरकार की पॉलिसी ये थी कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन भाई साहब कंजम्पशन तो तब बढ़ेगा ना जब पहली चीज तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट हो, तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में? फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मनी फॉर कंजम्पशन, राइट? दिस अफेक्टेड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट बिकॉज द मनी used in consumption activities like salaries of government officials, maintenance of government setup did not create long term demand. अब देखो, कैपिटल क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सरकार केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे फोकस करेगी, राइट, इफ द गवर्नमेंट विल ओनली फोकस ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, again it will not lead to the economic growth. For the sustained economic growth there is a need of the capital expenditure, and at this point of time the government was focusing on enhancing the consumption of the general public by the revenue expenditure, by increasing the salaries, by giving the pensions, by giving the by expending on the social welfare schemes. but इससे कुछ हुआ नहीं, इससे लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट नहीं हो पाई, ठीक है। And the deficit created by the consumption could not be sustained and resulted in high BOP deficit in the year 1980s. और इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया 1980s में, ठीक है। दैट वाज द थर्ड रीजन. What was the fourth reason, my dear friends? The fourth reason, India followed a fixed exchange rate system before 1991, and India kept its currency overvalued in order to regulate the import cost of the government. ठीक है सर, हमने क्या करा, अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर रखा था ताकि हम इंपोर्ट कॉस्ट को रेगुलेट कर सकें, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इट रिजल्टेड इन एन अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स। अब अगर हम अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर देंगे तो जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट करेगा, वो नहीं देगा ना, वो कहेगा यार मेरे को तो, अगर मान लेते हैं कि उसको कोई चीज $100 की मिल रही है बट हमारी करेंसी ओवर वैल्यू होने की वजह से उसको $90 की मिलेगी, तो वो दूसरे देश में भेज देगा जहां पे उसको $100 मिल रहे हैं, तो अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। मेकिंग अवर इंडस्ट्रियल सेटअप इनवर्ड लुकिंग एंड इनएफिशिएंट, और हमारे पास इंडस्ट्रियल सेटअप था नहीं, ठीक है, तो हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज के टुवर्ड्स जा ही नहीं सकते थे। इनवर्ड लुकिंग का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा ही नहीं सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था विच लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड विच लेड टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एक्चुअली इन द ईयर 1991. एंड लास्ट रीजन, माय डियर फ्रेंड्स, बट नॉट द लीस्ट, self reliance versus self sufficiency. Self sufficiency means trying to produce everything on your own. Self sufficiency का मतलब क्या होता है कि हम खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस करें, और सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग व्हाट यू आर मोस्ट एफिशिएंट इन एंड इंपोर्टिंग थिंग्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली. अब देखो, एक होता है
कॉन्फिडेंस होना और एक होता ओवर कॉन्फिडेंस होना, बस वही बात थी। द गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बट द पॉलिसी सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। सरकार की जो पॉलिसीज थी वो तो ऐसी थी कि हम खुद से सब कुछ बना दें, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था, the actual scenario, the actual environment was leading to the self reliant economy and not the self sufficient economy. Self sufficient हम बन ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में, because we did not have the enough resources, the required capital, both human and the machinery capital, कि हम अपने आप से खुद से सब कुछ प्रोड्यूस कर लें, राइट। तो सरकार ने पॉलिसीज तो बनाई थी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनने की, लेकिन हो ये रहा था कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थे हम, ठीक है जी, क्योंकि हम वो चीजें तो बना पा रहे थे जिसमें कि वी वर मोर सफिशिएंट इन, ठीक है, लाइक जूट बढ़िया बन रहा था, कॉटन बढ़िया बन रहा था, लेकिन मशीनरी वगैरह में हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी था ही नहीं, ठीक है। एंड दैट वाज द फिफ्थ रीजन दैट लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द ईयर 1991, ठीक है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स द रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 इज क्लियर. You are definitely going to have a question from this particular topic in your examination. और जितना मैंने पढ़ा है that is more than enough to understand and that is more than enough for your JAB examination with respect to this topic of economic crisis of 1991. In the next video we will be talking about कि इन क्राइसिस के बाद सरकार ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में क्या क्या चीजें हुई, we'll talk about all of them. Thank you very much for watching. Goodbye, take care and God bless.